everyone, welcome to my YouTube channel Crack That. This is Priyasha Das and this video is going to be really special in many terms. Number one, because it is specifically going to start a new series on GDPI. I really want to crack this GDPI thing because I have come across many instances and many of my own friends have been the toppers, literally 99 percentiles, 98.9 percentilers, but they have still not been able to crack the top IIMs or the other top B schools GDPI rounds. And this really shows that only intelligence is not the parameter on which you are judged on any B school. So therefore, what are the areas which we can work on and what are the areas which we can improve is definitely going to help. And this video is going to talk about that only. And secondly, it's very important because I wish I would have known this before, and at the same time this is what I have learned across the entire sessions I had in this entire 1 year which I completed now in XLRI. So this is going to be the learnings right from the college, right from the professors. And you know that for an HR, interviews are so important. We learn it in so very detail. So therefore I'll be sharing those learnings and of course the things which the professors have shared in the classes and personally, that what they expect from a candidate in a B school interview. So based on all of that, this video is going to be really useful, guys. But before I started, I would request all of you to please share this with more and more people. I really want this family to grow big and I want to help more people, and they should be at least aware of the fact that there's a channel on YouTube which is working selflessly free of cost for everyone, providing them free one-on-one mentorships and answering their queries in personal. So if you can really help me out and support the channel by sharing it with more and more people and subscribing, then it would be really great. Thank you so much, everyone. Let's get started now. So first of all, we get to know that intelligence is a parameter which has already been checked in the written examination. आप सभी को पता है कि हम सब जब एग्जाम लिख कर आते हैं, अच्छे नंबर लेकर आते हैं, तो इट्स क्वाइट जेन्युइन एंड अंडरस्टूड कि हम इंटेलिजेंस वाले पैरामीटर में तो पास कर रहे हैं. But in the B schools, there is an additional thing which is being tested and tested on a very heavy weightage. That is called as a competency. So a competency is your underlying characteristic which will enable you to deliver superior performance. ऐसी हमारी definition बोलती है in our books and in our classes. But इसकी actual understanding है कि आपके अंदर की वो capability जो आपको एक अच्छा काम करने के लिए फोर्स करती है, दैट्स योर कॉम्पिटेंसी. एंड कॉम्पिटेंसी को जांचना, परखना इज व्हाट द इंटरव्यूअर ट्राइज टू डू ड्यूरिंग द पीआई राउंड. तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल में समझते हैं. कॉम्पिटेंसी एक तरह का आइसबर्ग है गाइस, जहां ऊपर में कुछ थोड़ी चीजें दिख जाती हैं बट नीचे की काफी गहरी चीजें होती हैं जो ये इंटरव्यूअर्स हमें प्रोब करके ज्यादा क्वेश्चंस पूछकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. सो ऊपर का एरिया है स्किल और नॉलेज का. तो स्किल और नॉलेज हमें बहुत इजीली पता चल जाएगा किसी भी इंसान का बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, उन्होंने कितने नंबर लाए, उनके एकेडमिक्स, उनका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह. इससे हमें उनकी स्किल्स और उनकी नॉलेज पता चल जाएगी. लेकिन फिर आता है आइसबर्ग का निचला हिस्सा, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द प्लेसेस कॉल्ड एज सोशल रोल, सेल्फ इमेज, ट्रेट और मोटिव. ये सारी चीजें जानना बहुत ज़रूरी होता है एंड इंटरव्यूअर्स हमेशा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि बंदे का सोशल रोल, सेल्फ इमेज कैसा है, उसका मोटिव क्या है टू जॉइन द बी स्कूल और डू एन एमबीए, एंड वो किस तरह की पर्सनालिटी और एटीट्यूड शो करता है. तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि सोशल रोल क्या होता है. दैट इज द इमेज विच वी इंडिविजुअल्स मेक ऑफ आवरसेल्व्स इन द पब्लिक. तो मैं पब्लिक में अपने आप को कैसा शो करती हूँ, दैट इज माई सोशल रोल. एंड इस पैरामीटर को जज करने के लिए आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपने किसी भी वॉलंटरी एक्ट में क्या किया है, या फिर आपने कुछ अच्छा किसी के लिए सेल्फलेसली क्या किया है, थिंग्स लाइक दैट. और अगर ना पूछा जाए और आपने किया हो तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हो अपने एसओपी में, रेज्यूमे में या इंटरव्यू में किसी भी क्वेश्चन के दौरान. सेकेंड फैक्टर आता है सेल्फ इमेज का. तो दिस इज द व्यू विच पीपल हैव ऑफ देमसेल्व्स, जो उनकी खुद की आइडेंटिटी शो करता है. जैसे मैं खुद को एक टैलेंट एक्विजिशन एक्सपर्ट मानती हूँ, तो अगर मैं अपने आप को टैलेंट एक्विजिशन एक्सपर्ट मानती हूँ तो उसको प्रूव करने के लिए मैं अपना कुछ डेटा दूंगी. जैसे मैंने एक दिन में 100 इंटरव्यूज लिए और उसमें से 90 कैंडिडेट्स वर रियली अपेयर्ड टू बी रियली गुड इन देयर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस.
जहाँ पर वो अभी 5 साल हो गए काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग ग्रेट जॉब, यानी कि मैंने 90 अच्छे लोग चुने थे आउट ऑफ 100। ये शो करता है कि मैं टैलेंट एक्विजिशन एक्सपर्ट हूँ। उसी तरह से अगर हम आ जाए दूसरे फैक्टर में, विच इज द ट्रेट। ट्रेट एक्चुअली आपका कैरेक्टर है, ट्रेट आपका व्हाट यू कैन से पर्सनालिटी है, और उस पर्सनालिटी और कैरेक्टर की जड़ तक पहुंचने के लिए इंटरव्यूअर्स आपको कई बार परेशान करने की कोशिश करेंगे। दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस व्हिच यू आर नॉट कंफर्टेबल आंसरिंग, और which might hurt you slightly or might enrage you। आप गुस्सा भी हो सकते हो। तो इन ऑल दीज सिचुएशंस यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अपना काम बनाए रखना है। एंड अगर आप थोड़े हॉट हेडेड हो तो यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बीइंग रियली कूल इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल, because they will try to bring it out anyway by asking you something which you might not be comfortable answering। तो make sure that आप इन चीजों पे काम करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोटिव। मोटिव आपके वो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं और आपके प्रेफरेंसेस हैं जो आपका बिहेवियर ड्राइव करते हैं। और जब आपका बिहेवियर ही चेंज होता है आपके मोटिव से, तो उस बिहेवियर ही, इफ यू गाइज नो, आपका बिहेवियर ही आपका रीजन है हाउ यू विल बी वर्किंग, और आपका क्यू है जिसके थ्रू कोई भी समझ पाएगा कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट हो पाएगा या नहीं, ये एक हमारे लिए एक प्रॉपर कल्चर फिट है या नहीं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, XLRI में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि आप कल्चर फिट में हो या नहीं, आप एथिकल हो या नहीं, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इसीलिए इट्स अ वेरी मेजर थिंग टू कीप इन माइंड दैट आपके मोटिव्स क्लियर होने चाहिए। आप अगर खुद के मोटिव्स अच्छे और साफ रखो तब तो आपको कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपके कुछ खराब मोटिव्स है, एज इफ कि मुझे कुछ डेटा चाहिए या मुझे तो बस कुछ ये करना है वो करना है, वो खुरफात मत दिखाना अपनी प्लीज इंटरव्यू में। ठीक है। तो मोटिव्स को एक शॉर्ट लाइन में अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप उसमें अपनी अचीवमेंट ड्राइव दिखा सकते हो। आप ये दिखा सकते हो कि यू वांट टू डू समथिंग बेटर, एंड दिस काइंड ऑफ अचीवमेंट ओरिएंटेशन और एम्बिशन वुड रियली मेक देम थिंक कि ये बंदा हमारे काम आएगा। इसको आप अपने लर्निंग कर्व में भी यूज कर सकते हो कि मैं नई चीजें सीखना चाहता हूँ। दैट्स रियली गोना हेल्प। ऑलराइट, इन सारी चीजों के कंप्लीट होने के बाद आते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, यानी कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज। एक होता है थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी, जो कि आपका किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। जैसे अगर आप बी स्कूल में आना चाहते हो तो एक बी स्कूल के स्टूडेंट की बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसके नंबर्स अच्छे होने चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसको मार्केट की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो कि बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसे हम थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। एंड किसी भी इंटरव्यू में इसका वेटेज 10 to 20%, मैक्सिमम 30% होता है। बट 70%, 80%, और sometimes in some colleges 90% weightage goes to differentiating competencies, जो कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आपके सुपीरियर परफॉर्मेंस की वजह होती है। यानी अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काफी अच्छे सुपीरियर परफॉर्मेंस शो करने वाले कैंडिडेट हो, तो आपने ऐसा क्या अलग किया बाकी लोगों से जो आप डिफरेंशिएट हो गए, यूनिक हो गए। तो दोज कॉम्पिटेंसीज आर कॉल्ड एज डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसीज। तो आप अगर अपने डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसीज खुद से रेज्यूमे में, एसओपी में, या खुद से इंटरव्यू में भी बोलोगे, तो दैट विल रिड्यूस देयर टास्क ऑफ प्रोबिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इस बंदे में स्पेशल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी बोल सकते हो। सपोज करो कि आप फ्रेशर हो, और तो आप ये बोल सकते हो कि मैंने अपने कॉलेज के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, मैंने एनजीओ में काम किया है, मैंने यहाँ काम किया, मैंने अपना फैमिली बिजनेस संभाला है। ये चीजें आपको बाकियों से थोड़ा स्पेशल बनाती हैं, एंड दीज आर नथिंग बट योर डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसीज। सो मेक श्योर टू वर्क ऑन देम। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, दैट इन सारी चीजों से आपको फायदा कैसे होगा। तो लेट मी टेल यू, दिस कैन बी वॉच्ड इन डिफरेंट टाइमलाइंस। अगर आप इसे जस्ट इमीडिएटली बिफोर योर इंटरव्यू देख रहे हो, तो ऑफकोर्स आप अपने ये चीजें कंट्रोल कर सकते हो। यानी आप उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो जो आपको सामने नहीं दिखाना, और आप उन चीजों को एग्जैजरेट कर सकते हो जो चीजें आपकी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं या अच्छी चीजें हैं। तो इन चीज पर आप इमीडिएटली फोकस कर सकते हो। बट जो लोग इस वीडियो को एक लंबे टाइम स्पैन में देख रहे हैं, लाइक मोस्ट प्रोबेबली जो लोग नेक्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन या इस ईयर के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्डन वीडियो फॉर यू गाइज, बिकॉज आप अपने प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए इस वीडियो से काफी पॉइंट्स उठा सकते हो।
मैंने आपको बता दिया कि किन पॉइंट्स पर और किस वेटेज के हिसाब से आपको पीआई राउंड में जज किया जाता है. तो बेस्ड ऑन दैट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोफाइल immediately and trust me you will see that we will be able to rock it very nicely. And don't worry about the certifications and the profile building stuff. I'm already working on that and I'm very soon going to come up with something really great where I'll be giving you one-on-one advice on what you should do for building up your profile perfect for a B school. So if you found this video useful, please do like this video, leave below a comment, and of course do not forget to subscribe to the channel if you're new to it. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वो है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए. शेयर इट विथ मोर एंड मोर पीपल एंड दैट्स हाउ यू विल शो योर लव टू मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज. ऑल द